थोड़ा-सा अगर रियलिटी ग्राउंड को टच करें तो रिकग्निशन हमारा मूड अपलिफ्ट तो कर देता है। हम पॉज़िटिव भी फ़ील करते हैं, ठीक है? और हम कीप गोइंग भी रहते हैं। लेकिन अगर रिकग्निशन नहीं मिला तो वो सिचुएशन कैसे बियर करोगे? उसके लिए खुद को प्रिपेयर किया। अब देयर मस्ट बी समवन कि जिसके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम नेगेटिव क्यों सोचे? हम तो रिकग्निशन सोचेंगे। You know, this one thought recently hit my mind, and I'm sure it's gonna hit you too if you literally hear me out. We all can become our own self help. We all have that power to become our own self help. We are not just getting that opportunity. What kind of opportunity? Opportunity to learn how to think in a way to help our own self. Interesting, right? Before we proceed, can I just welcome you guys? Welcome back to the space where voices matter, hearts open, and courage rise. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me on Speak Up Hesitations as well. All right, let's take pause for a moment and tell me what kind of idea or the image that's getting generated in your mind when you're thinking of self-help. Is it a pile of books or a motivational video or a person working out in a gym or meditating or a person journalizing their dream? Or is it the version of you who refuses to give up on yourself? वर्जन ऑफ यू को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे सोर्सेज जो हम ढूंढते हैं वो सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वेदर इज द पाइल ऑफ बुक, वेदर इज द मोटिवेशनल स्पीच और अ वीडियो or someone meditating in the gym or doing some yoga or journalizing their dreams. Had you ever give a thought to that why our basic instinct is like you look for external sources to get motivation from? क्योंकि उन एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें अवेयर कराया गया है एंड द मोमेंट यू रीच दोज एक्सटर्नल सोर्सेज दे टेल अस लुक इनसाइड योर ओन सेल्फ। वो एक्सटर्नल सोर्सेज भी हमें यही बता रहे हैं change comes from within. It's all self, it's all you. People and things can just be guide, but whether you wants to take the journey or not, that's your call and it's beautiful. सेल्फ हेल्प में हमें एक ऐसे तरीके से सोचना पड़ता है जिस तरीके से और कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन उस न्यू पैटर्न को डेवलप करने के लिए पहले पुराना वाला पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कहीं हम उस पुराने पैटर्न में वापस ना चले जाए सो दैट वी कैन क्विकली change. And this is extremely important for self help. In this video we're going to cover self help thinking way, self help thinking pattern. Everybody has taught us how to read, how to write, how to chase goals, but there are a lot of setbacks that we have to face in between. जब उनसे डील करना पड़ता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, गिव अप करने जैसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं. Nobody has taught us how to think in a way to lift ourselves up. What is that way of thinking? What is that thinking pattern? We are going to cover that. People are still not clear about what positive thinking is. Ignoring your current situation and saying everything is okay, everything is fine is not positivity. Accepting your current situation and finding a way to get out of it is positivity. Good and positivity is an attitude of a person. We all have to figure out what is that thinking pattern that can help us to be the voice that says, I believe in you when nobody else is around. We are going to talk about that thinking pattern. सबसे पहले तो stop getting interested for seeking only good and good. कि हमें कोई भी dislike ना करे. Just for an example, for whatever reason, there's nobody around you who likes you. तो भी तो आपको exist करना ही है. Still you have to live your life. How many of you are there who have insecurities or fear of judgment or low self-esteem and still living their life, doing their everyday task, going for their jobs, services, everything. A lot of you, right? तो आपके peers आपको like करे या dislike करे, आपको तो सुबह रोज उठना ही है. Then why not with the attitude that keeps our mental health stable? अगर आपको कोई डिसलाइक करता है तो वो उनका वे ऑफ लिविंग है, उनका राइट समझ के उनको डिसलाइक करने दो. हमें ये वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना ही पड़ेगा. 10 लोग और होंगे जिनको डिसलाइक किया होगा, लेकिन हमने इतना स्पेशल क्यों फील किया? क्योंकि हमने डिसलाइक को एक्सेप्ट करने का करेज कभी डेवलप किया ही नहीं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगी कि कोई मुझे डिसलाइक करे? कोई भी डिसलाइक क्यों होना चाहेगा? मैं क्यों चाहूँगी कि कोई मुझे डिसलाइक करे? लेकिन अगर कोई मुझे डिसलाइक कर रहा है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती. आई हैव टू फेस द सिचुएशन. लेकिन जिस तरीके से बाकी लोग सोच रहे हैं और उस सोच की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस कॉमन सोच के साथ तो मैं या कोई भी अपनी सिचुएशन फेस नहीं कर पाएगा. तो हमें ऐसे तरीके से सोचना है जो एक सपोर्ट का काम करे, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करे. अब अगर हमें कोई डिसलाइक करता है तो वो उनका वे ऑफ लिविंग है, उनका राइट समझ के उनको डिसलाइक करने दो. ये थिंकिंग पैटर्न हमें डेवलप करना ही है.
सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइक और डिसलाइक दोनों हो सकता है। हैव यू एवर नोटिस कि हम खुद को सिर्फ लाइक के लिए प्रिपेयर करते हैं? आज हम ऐसे ड्रेसअप होके जाएंगे, विल डेफिनेटली गेट अ लाइक। आज हम ऐसे बोलेंगे, विल डेफिनेटली गेट अ प्रेज, और पीपल विल डेफिनेटली अप्रिशिएट अस। आज हम ऐसे खाना बनाएंगे, विल डेफिनेटली गेट अप्रिशिएटेड। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कि लोग हमें सिर्फ पसंद करें। वी आर जस्ट एंड जस्ट एक्सपेक्टिंग अ लाइक, नथिंग एल्स। और फिर अनकॉन्शियसली हम सिर्फ लाइक के लिए ही खुद को मेंटली प्रिपेयर करते जाते हैं। तो जब आपने खुद को डिसलाइक के लिए मेंटली प्रिपेयर किया ही नहीं, तो आप डिसलाइक कैसे बियर कर पाओगे? एंड दैट वाई वी ऑल आर सफरिंग। वी हैव टू बिल्ड दिस थिंकिंग प्रोसेस कि कोई अगर हमें लाइक करता है वो भी उनका टास्क है, कोई हमें डिसलाइक करता है वो भी उनका टास्क है। लेट्स जस्ट नॉट इंटरफेयर इन समबडी एल्सेस टास्क। और जब हम ऐसी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं, वी फील समवेयर फ्री फ्रॉम इनसाइड, वी फील नॉट टाइड टू एनीबॉडीज जजमेंट, एंड देन वी फील अ ब्लिस ऑफ हैप्पीनेस। एंड स्पेशली आई फील एक्सट्रीमली एनर्जेटिक ऑल्सो। अब हम डिसलाइक को रिकग्निशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिजायर फॉर रिकग्निशन। थोड़ा सा अगर रियलिटी ग्राउंड को टच करें तो रिकग्निशन हमारा मूड अपलिफ्ट तो कर देता है, हम पॉजिटिव भी फील करते हैं, ठीक है, और हम कीप गोइंग भी रहते हैं। लेकिन अगर रिकग्निशन नहीं मिला तो वो सिचुएशन कैसे बियर करोगे? उसके लिए खुद को प्रिपेयर किया। अब देयर मस्ट बी समवन कि जिसके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम तो रिकग्निशन सोचेंगे। यही तो पॉजिटिव सोचना है गाइस। रिकग्निशन नहीं मिला तो सिचुएशन कैसे बियर करोगे, वो पॉजिटिव होना है। नेगेटिव सिचुएशन को कंसिडर करने से या ऑपोजिट सिचुएशन को कंसिडर करने से आप नेगेटिव नहीं हो जाते हो। अगर आप कंसिडर ही नहीं करोगे तो खुद को प्री प्रिपेयर कैसे रखोगे? दैट्स व्हाई पीपल आर सीकिंग हेल्प फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज एंड गोइंग आउट कि व्हाई वी फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। हाँ, मुझे रिकग्निशन मिलेगा ही नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, ये नेगेटिव पैटर्न ज़रूर है। सो वी हैव टू बिल्ड दैट थिंकिंग प्रोसेस कि रिकग्निशन मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ वी कांट सीक फॉर इट, वी कांट डाई फॉर इट, क्योंकि या तो रिकग्निशन मिलेगा या तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, और सफ़र तो कोई भी नहीं करना चाहता है। लेकिन उस सफ़रिंग को बियर करने के लिए, उस सफ़रिंग से बाहर निकलने के लिए आप कुछ तो करोगे, तभी तो आप बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज़ को रीच आउट करते हो। लेकिन वो सारे एक्सटर्नल सोर्सेज़ आपको आपके सेल्फ की तरफ डायरेक्ट ज़रूर करेंगे कि प्रॉब्लम आपके सेल्फ में है, प्रॉब्लम आपके थिंकिंग पैटर्न में है। प्रॉब्लम बाहर है लेकिन आप में ज़्यादा है कि आप खुद को प्रोटेक्टेड नहीं रख पा रहे हो, खुद को अपलिफ्टेड नहीं रख पा रहे हो। सो वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न इन सच अ वे जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करे। एक ऐसा शील्ड बन जाए जिसमें दुनिया के रिएक्शंस हमें अफेक्ट ना कर पाएँ। लेकिन रिएक्शंस तो आएँगे, लेकिन हमें तो अफेक्ट होने से बचना है। सो वी हैव टू बिल्ड आवर थिंकिंग पैटर्न, we need to stop seeking recognition. We have to build our thinking patterns. He or she is giving us recognition or not, it's their task to do. Let's just leave their task on them. Why we are interfering on their task? And as soon as we get comfortable with this thinking pattern, we feel not burdened. We feel free क्योंकि अब आप किसी के recognition से नहीं बंधे हो, अब आप किसी के judgment से नहीं बंधे हो, अब आप किसी के opinion से नहीं बंधे हो। और अगर आपको recognition मिल भी रही है तो भी आप recognition से बंधे नहीं हो। और ये थिंकिंग पैटर्न हमें सेल्फिश नहीं बनाता, और आपको सेल्फिश बनना भी नहीं है। ये थिंकिंग पैटर्न सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करके रखता है ऑन दोज डेज व्हेन पीपल आर नॉट चीयरिंग अप फॉर अस, व्हेन पीपल आर जस्ट फाइंडिंग फॉल्स इन अस। क्योंकि पता है सिर्फ करियर बिल्डिंग प्रोसेस ही लाइफ जर्नी नहीं है। द टाइम यू टेक बर्थ योर लाइफ जर्नी स्टार्ट्स एंड देयर इज नो स्पेसिफिक डिजाइन डेस्टिनेशन। इवन इफ यू रीच योर डिजाइन डेस्टिनेशन, दैट्स नॉट योर फुल स्टॉप। उसके बाद भी आप कुछ करोगे, कुछ सोचोगे, एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू डोंट रीच योर डिजाइन डेस्टिनेशन and life takes you somewhere else, and later you realize that was the best u-turn of my life. But in this life journey, lowest moments se deal karna, it's extremely challenging, and that's why we focus on self-help. Self-help is a way of thinking, a different thinking pattern that you have to go with, that commonly nobody else is going with, and that's the most positive way to live a life with. We'll talk more about this in the next video. Thanks for watching. I'll see you in the next video. I hope you got the core of the video, connected to the soul of the video. Bye for now.